Good morning to all. Myself, Dr. Sunali Rasdev. Now, I'm starting my video. Today's topic is isotopes in biochemistry. हम आज isotopes का यूज देखेंगे biochemistry में basically. What is isotopes? और हम इस टॉपिक के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे पहले हम वो देख लेते हैं. The learner will be able to after this complete हो जाएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली आज की वीडियो का या इस टॉपिक का वो ये है कि the learner will be able to define isotopes, explain radioactive decay and half-life, enumerate the research, diagnostic and treatment of application, describe the biological effect of radiation, list of radiation hazard and radiation protection. Basically at the end of this video you can explain this topic, this point of this topic. Okay. Now, what is the basic principle of isotopes? Atom is the smallest unit of an element having all the properties of the elements. So, छोटी units होते हैं, ठीक है? Atom. Atom consists of proton, neutron, electron. We all know protons and neutrons are present in the nucleus. ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है और जिसके बारे में सबको पता है. एटॉमिक नंबर इसको हम Z से शो करते हैं, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम एंड मास नंबर या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं हम इसे हम A से डिनोट करते हैं, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बिकॉज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज नेग्लिजिबल. जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो बहुत छोटा होता है इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं बेसिकली. न्यूक्लियस विद द सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass या atomic weight की बात करें are designated as isotopes. Isotopes are basically the different nuclear species of the same element. आपको बस ये याद रखना है कि isotopes में जो है वो जो element होता है उसका atomic number जो है वो same है, but जो different है वो है उसका atomic weight या atomic mass. For example, carbon 13 and carbon 14. इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, पोजीशन सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो ये बोथ क्या हो गए आइसो मतलब सेम, तो मतलब प्लेस सेम है, जगह सेम है इनकी, है ना. नंबर जो है एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन बस इनके एटॉमिक मास में एटॉमिक वेट में चेंजेस आते हैं, इसलिए हम इनको आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, here we have some more example of isotopes. Hydrogen 1 is normal hydrogen with one proton. It is present 99.985% for hydrogen ion in nature. Basically हम जो हाइड्रोजन आयन नेचर में देखते हैं वो हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है. H2 की अगर हम बात करें तो इस heavy hydrogen or diuterine. It has one proton plus one neutron. It is present only 0.015% in nature. H3 is tritarium with one proton and two neutron. It is not present in nature but may be produced artificially. ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं. These three isotopes of hydrogen will react similarly in chemical reaction because all of them contain only one electron. सब में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो सेम है ना. उनमें चेंजेस क्या आ रहा है इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है. Now, since the number of electron is the same among isotopes, the general chemical properties are the same. Obviously बात है जब उनका atomic number same है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर डेजिग्नेटेड आइसोबार. ये याद रखिएगा कि जिनका अब एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और उनका एटॉमिक वेट सेम है, उनको हम आइसोबार बोलते हैं, है ना. ये दो दूसरी अलग टर्मिनोलॉजी. They will have different chemical properties since the number of electron will vary depending on the number of proton present. जो isobars होते हैं उनमें chemical property अलग होती है since the number of electron will vary. का atomic number vary कर रहा है, उनका जो है basically same atomic mass है ना. इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है इसलिए इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं प्रोटॉन प्रेजेंट इनके अंदर, ठीक है. आइसोबार की बात करें. Naturally occurring isotopes of lighter element are stable, but those of higher element are unstable. Example lead और bismuth. Naturally occurring जो isotopes होते हैं वो stable होते हैं
बट जितने भी हायर एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन to stable form by a process known as radioactive decay. And actually, what is radioactive decay? We will discuss later. Decay typically is associated with emission of energy in the form of radiation. Decay basically क्या होता है? Radiation का emission करता है ना? एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है, तो हम उसको डिके बोलते हैं, टूटना बोलते हैं। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी इंक्रीजिंग हमें देखने को मिलती है। देयर बाय डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जितने ज्यादा अगर हम हायर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनकी अनस्टेबल होने का कारण ही है। इनफैक्ट ऑल एटम बियॉन्ड 83 प्रोटॉन आर अनस्टेबल। आपको ये याद रखने की चीज है कि जितने भी अगर हम बात करें तो अगर एटम है अगर उनके अंदर 83 प्रोटॉन से ज्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो वो कंप्लीटली अनस्टेबल होते हैं। नाउ व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन फ्रॉम एटम and its nucleus may be either particle or electromagnetic in nature. Particulates radiation consists of matter like electron, positron, proton, neutron, etc. रेडिएशन किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एनर्जी। कॉमनली अकरिंग रेडियोएक्टिविटी आर ए, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये हम अभी देखेंगे कि अल्फा कौन सी एमिट करती है, बीटा रेज क्या एमिट करती है, गामा रेज क्या एमिट करती है। मतलब कॉमनली अगर हम बात करें तो जो रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो अल्फा, बीटा, गामा रेज एमिट करती है। अब एक्सरे एंड गामा रेज हैव द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो हम एक्सरे यूजुअली आप देखते हैं वो और गामा रेज जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल कैरी करती है। बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे और गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन which are unit of energy release having no mass. एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होती है? प्रोटॉन। आपने देखा लाइट के फॉर्म में होती है। और विच आर यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज हैविंग नो मास, कोई भी मास रिलीज नहीं करती है। अभी हमने रेडिएशन देखा, अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिव डिके, ना, टूटना। रेडियोएक्टिव डिके इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड एन इंडेक्स ऑफ न्यूक्लियर instability. Through radioactive decay the compound gain stability. आफ्टर डिके जो कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी ले लेता है। डिके इज मैनिफेस्टेड बाय स्पॉन्टेनियस चेंज विद इन न्यूक्लियस दैट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मास एंड एमिशन ऑफ एनर्जेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। अब हम तीनों जो हमने डिके देखे अल्फा, बीटा, गामा, उनकी डिटेल देखेंगे। फर्स्ट इज अल्फा डिके। हैवी एलिमेंट्स मतलब जिनका जो एटॉमिक, ये जो मैंने आपको बताया था, जिनका एटॉमिक नंबर है, ये आप देख रहे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो Z फ्रॉम Z को जिससे डिनोट कर रहे हैं, विच इज एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर अगर 70 से ज्यादा होता है, लूज इट्स न्यूक्लियर वेट बाय शीडिंग अ 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन फ्रैगमेंट identifiable after emission as a helium nucleus. This fragment is called a particle and its emission is known as a decay. बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं आपको अल्फा डिके का, तो वो हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस में। और इसलिए जो दिस फ्रैगमेंट इज कॉल्ड पार्टिकल एंड इट्स इमिशन इज नोन एज द डिके। most emitter are naturally occurring radioisotopes of heavy element. They have limited clinical applications. जो अल्फा डिके है उनका लिमिटेड क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है, कोई वास्ट लेवल पे हम उनका क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं देखते हैं। The alpha particle will carry 2 positive charge or produce maximum ionization in their path. Thus, they are most damaging to tissue. The alpha radiation are not useful in clinical medicine. The alpha particle do not travel far and can be stopped by a few layer of paper. ठीक है ना, ये एक रीजन है जिसकी वजह से इनका क्लिनिकल मेडिसिन में बोला जाए तो किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। नाउ बीटा डिके, there is conversion of proton to neutron or vice versa through positron. Positron are the negative electron or their positive equivalents. इसके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज बीटा इलेक्ट्रॉन, negative electron is beta particle and this is known as beta
डिके। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको बीटा डिके बोलते हैं। Emission of negative electron leaves the nucleus with an addition positive charge. Normally neutron is converted to proton, increasing Z, atomic number बढ़ता है, thereby reducing neutron number. Example iodine 131, carbon 14, hydrogen 3 and iron 59, है ना, ये बीटा डिके के एग्जाम्पल है। Emission of positive beta particle is called positron emission. है जो एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 1 होता है ना, and neutron become proton. Example for positron emission are carbon 14. अब ये आपको समझने की बीटा डिके जो है उसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, आयोडीन 131, कार्बन 14, हाइड्रोजन 3 और आयरन 59। अब सेकंड जो हमने देखा कि एमिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड पोजिट्रॉन एमिशन, है ना, जो बीटा पार्टिकल जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो हम उसको पोजिट्रॉन एमिशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एटॉमिक वेट होता है वो लेस देन होता है 1 से, है ना, एंड न्यूट्रॉन बिकम प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है वो बेसिकली क्या होता है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल फॉर पोजिट्रॉन एमिशन आर कार्बन 11, फ्लोरीन 18 and iron 50. When a neutron is split, one proton, one electron, beta particle and one neutrino are generated. The element is changed to one having a higher number in periodic table, है ना। अभी आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं, वन न्यूट्रॉन फ्रॉम कार्बन इज चेंज टू अ प्रोटॉन। कैसे एक कार्बन जो वन न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन जो है कार्बन को चेंज कर देता है टू अ प्रोटॉन में। Therefore, mass remains the same, but the element is changed. With one number more in atomic number, the electron thus emitted become the beta rays, so they are negatively charged. Now, gamma radiation and internal conversion. Gamma rays are characterized by their ability to penetrate material that are blocked by a alpha and beta radiation. After either alpha or beta decay or electron capture, nucleus return to ground state by shielding excess energy through emission of gamma photon or orbital electron. Continuation करते हैं हम। While alpha and beta radiation are particles, gamma radiation is in the form of electromagnetic wave. यहाँ पे आपको देखने की बात है कि अगर alpha beta radiation particle के फॉर्म में है तो जो gamma radiation होगा वो is in the form of electromagnetic waves. Gamma rays has no mass and no charge, and therefore penetration power is maximum. It is used to treatment of cancer cases. अब आपको याद मतलब ये समझने की बात है, आपने देखा है कैंसर के ट्रीटमेंट को हमको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, तो बेसिकली जो हम रेडिएशन यूज करते हैं वो गामा रेडिएशन होता है, क्योंकि वो पावरफुल मैक्सिमम पेनिट्रेशन करता है। तो कैंसर के केसेस में उसके ट्रीटमेंट में हम गामा रेडिएशन यूज करते हैं। द गामा रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये एक छोटा सा यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस दी गई है। The resulting xenon is at the metastable state. It will release further energy in the form of gamma radiation within a fraction of second to form the stable xenon. रेडिएशन हैजार्ड है, यहाँ पर आप एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं। टाइप्स लिखिए अल्फा बीटा और गामा की। कंपोज्ड ऑफ किस किस से मिलके बने हैं, अल्फा जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, बीटा जो है इलेक्ट्रॉन से और गामा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बना है। मास दिया गया है इनका, चार्जेस किसमें कितने होते हैं, आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर, रेंज इन एयर, स्टॉप्ड बाय, कैसे स्टॉप हो सकते हैं, है ना, और एप्लीकेशन किस किस की है। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन याद हो तो ज्यादा बेटर है कि जो अल्फा है वो रेडिएशन हैजार्ड एप्लीकेशन है उसकी, जो बीटा है उसकी रिसर्च और डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, और गामा जो है बेसिकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैंसर के उसमें यूज किया जाता है। रेट ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिके एंड हाफ लाइफ, इट इज important. Rate of decay is characteristic of each nuclide. It is unaffected by temperature, pressure, concentration and other physical and chemical parameters. जो half life है वो इन सब से unaffected रहती है. Rate of decay is defined as the rate at which radioactive parents atom decay to form more stable daughter atom. है ना, रेट ऑफ डिके क्या क्या डिफाइन करता है कि जो रेडियो एक्टिव पेरेंट्स एटम है उनका जब डिके हो रहा है तो वो कितने ज्यादा स्टेबल डॉटर एटम बना रहे हैं। ठीक है, हाफ लाइफ को हम यहाँ पे जो शो करते हैं, डोनेट करते हैं वो टी, और हाफ
1.5 के फॉर्म में करते हैं, इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैंपल एक्टिविटी टू डिक्लाइन टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इट्स अ ग्राफ शोइंग है परसेंटेज ऑफ ओरिजिन एक्टिविटी और नंबर ऑफ डेज के बीच में जो है हम हाफ लाइफ बता रहे हैं। आयोडीन 131 की हाफ लाइफ आपको बताई जा रही है, ठीक है, एंड हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131। नाउ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूनिट। बेक्यूरल जो है इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इज डिफाइंड एज 1 डिके पर सेकेंड। Activity of typical sample is expressed as kilo barbecurel, KBQ से हम इसको डिफाइन करते हैं। और कन्वेंशनली वो सबसे पुरानी यूनिट जो मैं बोलूँ जो रेडियोएक्टिव डिके के लिए रहती है तो सबको याद रहती है, विच इज क्यूरी, है ना। क्यूरी क्या है, सबसे ओल्डर और मोर कन्वीनियंटली यूज्ड यूनिट है। 1 क्यूरी जो है इज 3.7 into 10⁻10 डिके पर सेकेंड होती है। 1 क्यूरी इक्वल होती है 37 गीगा बारबेक्यूरल्स की, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। नाउ मैटर रेडिएशन इंटरेक्शन, radioactive emission transfer energy to atom and molecule they encounter chiefly through excitation and ionization. Ability of radioactive substances to produce excitation is one of its more important properties. It is the basic of its biological effect and is the basic of its detection method. Excitation describes the process where energy Excitation describes the process whereby energy of incident radiation is transferred to matter through raising of electron of irradiated material to higher energy level. If energy absorbed completely remove electron from the atom, it is called ionization. Resulting positive ion electron are referred to as ion pair. Ejected electron is called secondary electron. याद रखिएगा, एनर्जी एब्सॉर्ब अगर कंप्लीटली हो गई है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है एटम से, इसलिए हम इसको आयनाइजेशन बोलते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन आर रेफर्ड टू एज आयन पेयर और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। नाउ effect of radioactive species, particulate radiation alpha and beta produce ionization and excitation. Electromagnetic radiation produce ionization and additional effect known as photoelectric effect and Compton effect. Photoelectric effect occur in electron is eject was observed initially for light photon. डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम कैसे कैसे करते हैं, ये टेक्निक्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। ऑटो रेडियोग्राफी यूजिंग एक्सरे फिल्म बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ फिल्म ऑटोमेटिकली बाय द रेडियोएक्टिव कंपाउंड। गेज फिल्म डिटेक्टर, जिगलर काउंटर, scintillation detector, crystal scintillation detector, liquid scintillation detector, photo multipliers, PM ट्यूब भी यूज होती है, और पल्स हायर हाइट एनालाइजर, ये सब जो है मेजरमेंट करवाते हैं रेडियो एक्टिविटी का। अब कॉमनली यूज रेडियो आइसोटोप्स, कुछ तो याद होने चाहिए हैं। कार्बन एलिमेंट, इसके आइसोटोप्स अगर मैं बात करूँ तो कार्बन 14 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। हाफ लाइफ होती है इसकी 5600 ईयर। ये कौन सा रेडिएशन देता है, बीटा रेडिएशन देता है। इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिसर्च इन मेटाबॉलिज्म, कार्बन डेटिंग, ठीक है। हाइड्रोजन 3 जो है 12 साल इसकी हाफ लाइफ होती है, बीटा रेडिएशन एमिट करता है, रिसर्च इन सेल बायोलॉजी। फॉस्फोरस 32 14 डेज की हाफ लाइफ होती है, बीटा रेडिएशन एमिट करता है। न्यूक्लिक एसिड रिसर्च, ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसाइथीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्रोमियम जो है, क्रोमियम 51 वो 28 डेज की हाफ लाइफ होती है इसकी, गामा रेडिएशन देता है। आरबीसी काइनेटिक्स जो है आपकी इन डायग्नोसिस में आपकी हेल्प होती है इससे। आयोडीन 125 इसकी हाफ लाइफ है 60 डेज, गामा रेडिएशन एमिट करता है और रेडियो इम्यूनोएसिड की यूज होता है। आयोडीन 131 8 डेज इसकी हाफ लाइफ है, गामा रेडिएशन देता है और ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड कैंसर। टेक्नीटियम 99 जो है 6 आवर इसकी हाफ लाइफ होती है और इसका जो रेडिएशन है वो गामा है। ब्लड फ्लो एक्सपेरिमेंट्स गामा इमेजिन में इसकी हेल्प लेते हैं। रेडियम 226 इसकी 1600 ईयर हाफ लाइफ होती है, गामा रेडिएशन देता है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन फॉर ट्रीटिंग कैंसर,
कोबाल्ट 60 5.3 ईयर इसकी हाफ लाइफ, गामा रेडिएशन देता है, टेलीथेरेपी फॉर कैंसर, एंड द लास्ट इज केशियम। केशियम याद रखिएगा, अभी कमिंग आपको हम इसका और डिटेल बताएंगे कि इसमें 137 30 ईयर इसकी हाफ लाइफ होती है, गामा रेडिएशन एमिट करता है और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टेलीथेरेपी फॉर कैंसर। सबसे ज्यादा यूज होता है टेलीथेरेपी फॉर कैंसर। रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ट्रेसिस टेक्निक यूज टू स्टडी metabolic pathway. They are metabolized similar to normal molecule. Metabolic pathways have been traced by the method only. Turnover rate of compound can be studied using tracer. Okay, tracer technique. Example iodine 131 for IGS. Okay, isotope dilution technique. Total body content जो है body extracellular volume, intracellular compartment volume, etc. can be studied by this method. Carbon dating technology using carbon 14 age of fossils and other ancient material can be ascertained. आपने देखा होगा पेड़ों की जो लाइफ होती है, बेसिकली हम देखते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है, वो आप कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से ही पता करते हो, है ना। फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम इसी टेक्नोलॉजी से उनकी एज पता कर पाते हैं। जेनेटिक रिसर्च की बात करें तो उसमें कार्बन 3 जो है, कार्बन 3 लेबल्ड thymidine is widely used in cell division kinetics. Chromium 51 is used to determine cell lysis because it is taken up only with living cell. Double labeled molecule H3 or O18 are used in some cases. P32 is used in nucleic acid research or phosphorylation kinase study. Diagnostic application अगर हम देखें तो थायराइड अपटेक स्टडी में, थायराइड स्कैनिंग में, बोन एंड किडनी स्कैनिंग में, टेक्नीशियम ब्लड फ्लो स्टडी में, आरबीसी लाइफ स्कैन स्टडी में, रेडियो इम्यूनोएसिस में अलग अलग आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिख सकती है। पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये भी एक टेक्निक है, पीईटी स्कैन। इट इज अ मोर प्रिसाइज एंड sophisticated technique. The isotopes is produced on the spot by a cyclotron. The emission of positron and their combination with an electron, the electron resulting in the simultaneous emission of two gamma rays detected by a positron emission tomography camera. Now, radioactivity in treatment, ये ज्यादा important है हमारे लिए, वो हम देखेंगे। Radioactivity is used in treatment of cancer. Radiation after absorption by tissues produce cell damage induced by mainly ionization. Radiotherapy mainly affects cell in division phase so that next cell division is impaired, है ना, at DNA level की बात करें। Major problem is toxicity because normal cell are also damaged in the vicinity. Obviously बात है, रेडिएशन हो रहा है तो जो ऑलरेडी सेल्स में प्रॉब्लम है वो तो हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो भी इससे डैमेज होती है। However, mainly cancer cells which are in S phase are primarily affected. Radiotherapy may be of different type of depending on source and other characteristics. तो बात करें तो अलग अलग सोर्सेस पे भी डिपेंड करती है रेडियो एक्टिविटी। अनसील्ड सोर्सेज और सील्ड सोर्सेज। अनसील्ड सोर्सेज क्या होते हैं? सब्सटेंसेस इज केप्ट इन लिक्विड फॉर्म, मेनली बीटा रेज। Iodine 131 is used for thyroid cancer and secondary deposit in thyroid. Phosphorus 32 also used in some cases. Utilize gamma rays. अब ये हो गया unsealed sources. अब sold sources क्या है इसकी? Utilizes gamma rays. Radioactive material is covered by platinum alloy which absorb alpha and beta. Only alpha and beta. Only gamma rays passes through. This is used for cancer therapy. Source may be implanted into tissue as needle. है ना। सील्ड पर सोर्स में क्या हुआ? एक प्लेटिनम जो रहता है मटेरियल, एक रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज करते हैं हम, कवर्ड बाय एलॉय। और वो मटेरियल कौन सा होता है? प्लेटिनम का होता है, जो क्या करता है, ए और बी जो अल्फा और बीटा जो रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ गामा रेज को पास होने देता है। तो बेसिकली कैंसर थेरेपी में हम गामा रेज यूज करते हैं, ठीक है। और जो इम्प्लांट होता है, सोर्स जो है जो हम इम्प्लांटेशन में यूज करते हैं टिश्यू में, वो निडल के थ्रू होता है। Application of sources directly into cancer tissue is termed brachytherapy. Cesium 137 needles are used now.
which have replaced more toxic radium needles, है ना। केसीएम 137 needles आजकल यूज होती हैं कैंसर थेरेपी में, जो ब्रैकी थेरेपी कहलाती है बेसिकली। उसको हम रिप्लेस जो है केसीएम 137 उसने रिप्लेस कर दिया है बहुत ज्यादा टॉक्सिक रेडियम नीडल थी, है ना। इंटर intracavitary application, body of uterus, cervix, vagina, and interstitial application, oral cavity are commonly practiced. Teletherapy क्या होती है? Where source is kept away from the body. Initially, deep X-ray were used. Gamma rays from cobalt 60 and Ca 137 are used. They have highly penetration power and deep-seated cancer are effectively treated. मैंने आपको बताया, अभी हमने इससे पहले देखा था कि केसीएम जो है ना, केसीएम 137 जो है वो एक्चुअली में गामा रेज एमिट करते हैं, और गामा रेज की क्वालिटी होती है कि वो हाईली पेनिट्रेशन पावर है। इसलिए हम कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लेवल पे हम यूज करते हैं वो गामा रेज को करते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 और केसीएम 137 जो है गामा रेज एमिट करती हैं, टेलीथेरेपी कहते हैं इसको। लीनियर एक्सेलरेटर, KCM based radiotherapy is no more used, which is replaced by the linear accelerator. अब एक और नई थेरेपी आ गई है रिसेंट यूज में, which is linear accelerator. जो KCM based रेडियोथेरेपी हुआ करती थी, अब उससे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, हेयर इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड टू हायर एनर्जी लेवल of 8 to 12 megavolt and directed into the cancer tissue. It has more penetrating power and accurate beam focusing capability. As there is no permanent radioactive source in the machine, the radiation hazard is minimal. इसमें फायदा क्या है लीनियर एक्सीलरेटर का? केसीएम बेस्ड रेडियोथेरेपी जो थी उसके अंदर प्रॉब्लम ये भी आती थी कि उसकी वजह से साइड में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो भी इफेक्ट होती है। अब लीनियर एक्सीलरेटर थेरेपी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसे हम हायर एनर्जी लेवल पे ले जाते हैं, तो एटलीस्ट 8 to 12 मेगावोल्ट हम उसमें एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट कैंसर टिश्यू को डिटेक्ट मतलब पेनिट्रेट कर देता है ना, और पेनिट्रेटिंग पावर जो जाती है वो बढ़ जाती है, तो और वो एक्यूरेट फोकसिंग करती है, फोकसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो आइटसाइड की नॉर्मल सेल्स होती है वो डैमेज नहीं होती है, और इसमें कोई भी परमानेंट रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं होता है इस मशीन में, इसलिए रेडिएशन हैजार्ड भी बहुत कम होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे टेलीथेरेपी और लीनियर एक्सीलरेटर दोनों का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मशीन का टेलीथेरेपी है, यहाँ पर ये टेलीथेरेपी है, और ये जो है लीनियर एक्सीलरेटर आप देख सकते हैं इसके अंदर। रिसेंट में हम ये यूज करते हैं, टेलीथेरेपी का हम यूज करते हैं। नाउ रेडियो सेंसिटिविटी, Hodgkin's lymphomas and neuroblastoma are more radio sensitive. Epitheliomas, oral cancer, cervix cancer, breast and lung cancer are moderately sensitive. Osteosarcomas and malignant melanomas are poorly sensitive. Fractionated doses in small doses improve effectiveness and reduce toxicity. यहाँ पे एक रेडियोथेरेपी डिफर फ्रॉम डोजेस टू डोजेस, यहाँ पे सब एक चार्ट दिया हुआ है कि कितने डोजेस में कितना देना चाहिए, है ना। इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितनी है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेल इन डिवीजन में कितना है, नंबर ऑफ रिमेनिंग सेल कितनी है, नंबर ऑफ सेल किल्ड कितने हुए, ये एक चार्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है कि रेडियोथेरेपी का इफेक्ट कितना होता है। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन कैंसर टिश्यू। डायरेक्ट इफेक्ट रेडिएशन डैमेज डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम्स। डायरेक्ट इफेक्ट की हम बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या है, रेडिएशन डैमेज डीएनए मॉलिक्यूल। रेडिएशन क्या करता है, सीधे डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज कर देता है। क्रोमोसोम्स ब्रेक्स आर सीन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्री रेडिकल्स इन टर्न प्रोड्यूस सेल एंड डीएनए डैमेज। एज यू ऑल नो कि फ्री रेडिकल्स इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, अगर वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होंगे तो उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में उसको लेके अल्टरेशन देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह से डीएनए डैमेज भी होता है। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है रेडिएशन का कैंसर टिश्यूज पे, हम वो देखते हैं। डैमेज टू लोकल ब्लड सप्लाई, है ना, ये मैंने जो भी आपको बताया। कटिंग ऑफ न्यूट्रिशन लीडिंग सेल नेक्रोसिस एंड डेथ, but partially damaged cells are also destroyed by immunological system and other things. ये कहीं ना कहीं एक हमें देखने को मिलता है इफेक्ट रेडिएशन का कैंसर टिश्यूज पे। अब इफेक्ट ऑन नॉर्मल टिश्यूज, एक तो हमने कैंसर टिश्यूज की बात करी, अब हम बात करते हैं नॉर्मल टिश्यूज पे क्या इफेक्ट होता है। मे बी क्लासिफाइड इनटू सोमेटिक, जेनेटिक एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट। स्किन, सोमेटिक मतलब स्किन,
Affiliate on sweat gland may be permanently damaged. Thyma, blister, acute radiodermatitis की कंडीशन देखने को मिलती है नॉर्मल टिश्यूज पे, है ना. फिर chronic radiodermatitis after few months of exposure, skin atrophy, hypopigmentation, fibrosis, loss of elasticity, overdose leads to radiation burn, the skin slowing. ये सारी कंडीशन आपको स्किन पे देखने को मिलते हैं कैंसर थेरेपी में जो रेडियो एक्टिविटी यूज करते हैं. म्यूकोसा, gastrointestinal mucosa is extremely sensitive. Nausea, vomiting, diarrhea, ulceration and bleeding may result. Late swell include adhesion, fibrosis, xanthosis and obstruction. Gonads, highly radiosensitive, genetic alteration may result. Pelvic radiation completely sterility at 1000 Reds. Completely sterility की आ जाती है. ब्लड सेल पे क्या इफेक्ट होता है? बोन मैरो एंड लिम्फोइड टिश्यू आर हाईली सेंसिटिव. ल्यूकेमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिजल्ट. ब्लड काउंट हैव टू बी एसेंशियली परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. ये बार बार देखना जरूरी होता है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. रेडिएशन सिकनेस आ जाती है. डोज अबव 1000 रेडिएशंस is fatal. At 150 radiation, several illness is seen in 50% cases. Embryo irradiation can affect embryo at the blastocyst stage and can also affect skeleton, central nervous system, hematopoietic and other systems. Delayed effects are seen in almost all human systems, including skin, GIT, digestive, hematopoietic, CNS, eye, CNS, reproductive, urinary, respiratory, mucosal, skeleton, and endocrine system. Now, radiation protection and maximum permissible dose, है ना. Background radiation 150 rm per year from cosmic rays 50%, terrestrial involvement 30%, and internal involvement 20%. Granite and brick wall increase external background. Background radiation is high in higher elevation and coastal areas. Maximum परमिसिबल डोज जो है पीएम एमपीडी की बात हम करें तो वो होती है 5 mrem पर ईयर. टेक्नीशियन जनरल पॉपुलेशन इसकी जो होती है वो 0.5 mrem पर ईयर की होती है. नाउ एट द एंड प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ये जो हम करते हैं उससे वेयर रेडिएशन films turn black when exposure in high. Okay, keep source as far away as possible. Shield radioactive sources. Lead bricks. Handling to be done by remote devices. Use rubber gloves and apron. Radioactive material to be handled fast to reduce chance of exposure. Shorter the time spent, shorter the actual exposure. जितना ज्यादा हो सके कम से कम उसके कांटेक्ट में आइए. मटेरियल जो है आपने देखा कि ग्लव्स होना चाहिए, रबर के एप्रॉन पहना होना चाहिए. एक्सपोजर आपका जितना कम हो सके उतना करना चाहिए. रिमोट डिवाइस को यूज करना चाहिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हम बचें. इन सब ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए. इट्स ऑल अबाउट रेडियो आइसोटोप्स इन बायोकेमिस्ट्री. बेसिकली हमने इसके अंदर सारे रेज वगैरह पढ़ लिए हैं. हमने रेडिएशंस देखे कि कौन कौन से रेडिएशन होते हैं इसके अंदर. कैंसर थेरेपी में बेसिकली हम गामा रेज का यूज करते हैं बिकॉज गामा रेज हैविंग मोर पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज. और इसके अलावा भी जो राइट नाउ में जो यूज हो रहा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, हमने वो भी दोनों टेक्निक्स देखी, हमने दोनों मशीनें देखी. तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट एक्चुअल में व्हाट इज आइसोटोप्स. इट्स ऑल अबाउट my lecture. Thank you.